थैंक यू कृपेश भाई। હેપી ગુરુ પૂર્ણિમા બધા સાધક મિત્રો ભાઈ બહેનોને। અને આજે ગુરુ પૂનમ છે। અ, આધ્યાત્મિક યાત્રાના જે યાત્રીઓ છે, સાધકો છે, ભાઈ બહેનો છે, બધાને માટે તો ખરેખર આ એક પર્વનો દિવસ કહેવાય। ગુરુ પૂર્ણિમાનું મહત્વ આપણા શાસ્ત્રોની અંદર બી ઘણું છે। અને આ ગુરુ પૂર્ણિમાને વ્યાસ પૂર્ણિમા પણ કહેવામાં આવે છે। ભદ્રાયન વ્યાસ કે જેને બધા શાસ્ત્રોની રચના કીધી। ભદ્રાયન વ્યાસ જે હતા એને એને પણ આ ગુરુ પૂર્ણિમા એના નામથી પણ ઉજવાય છે, કારણ કે જે 18 પુરાણો છે એ પુરાણોની રચના કરનાર વ્યાસ હતા। બ્રહ્મસૂત્રની રચના કરનાર વ્યાસ હતા। યોગસૂત્રની ઉપર ટીકા કોમેન્ટ્રી કરનાર વ્યાસ હતા। અને મહાભારત આટલું મોટું જે હતું એની બી રચના કરનારા વ્યાસજી હતા। એટલે વ્યાસ પૂર્ણિમા એ રીતના આને ઓળખાય છે। અને આપણે ત્યાં ગુરુનો મહિમા તો પહેલેથી જ કબીર સાહેબ પણ કહી ગયા, ગુરુ ગોવિંદ દોનો ખરે કાકે લાગુ પાય, બલિહારી ગુરુદેવ કી ગોવિંદ દિયો બતાય। તો ગુરુનો મહિમા તો પુષ્કળ છે, પણ પ્રશ્ન એ છે કે ઘણા લોકોને એક પ્રશ્ન હંમેશા થાય કે ભાઈ ગુરુ કોને કરવા અથવા સાચા ગુરુ કોણ? તો થોડુંક વાંચતો તો એમાં મને 6 જાતના ગુરુઓ મળ્યા। એટલા 6 જાતના ગુરુઓ, એક નહીં। તો એ કયા છે જરાક તમને બી ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે એટલે મેં રાખ્યું કે ગુરુઓ 6 કક્ષાના હોઈ શકે છે। પહેલા છે પરમ ગુરુ, બીજા છે સિદ્ધ ગુરુ, ત્રીજા છે યોગી ગુરુ, ચોથા છે નિવૃત્તિ માર્ગી સાધક ગુરુ, પાંચમા છે પ્રવૃત્તિ માર્ગી સાધક ગુરુ, અને છઠ્ઠા છે ધર્મ પ્રચારક ગુરુ। આમ 6 પ્રકારના ગુરુ કયા? એમાં પરમ ગુરુ એટલે તો પરમાત્મા, પરમાત્માને જ ગુરુ, શિવને પણ ગુરુ ગણવામાં આવે છે, પરમાત્માને ગુરુ ગણવામાં આવે છે, એટલે પહેલા તો એ ગુરુ છે। પછી સિદ્ધ ગુરુ, સિદ્ધ ગુરુ એટલે જે એનલાઇટન થઈ ગયા, હવે જેને કશું કરવાનું બાકી નથી, એવા જે ગુરુ હોય છે જેને અષ્ટ સિદ્ધિઓ નવનિધિ બધું પ્રાપ્ત કરી લીધું છે, હવે કંઈ પ્રાપ્ત કરવાનું રહેતું નથી, એને સિદ્ધ ગુરુ કહે છે। યોગી ગુરુ એટલે જે યોગના માર્ગે આગળ ચાલે છે અને એ ઘણા આગળ છે, હવે બસ એનલાઇટન થવાની તૈયારીમાં જ છે, એવા બાકી હોય એને યોગી ગુરુ કહ્યા છે। ચોથા છે નિવૃત્તિ માર્ગી સાધક ગુરુ, એટલે સાધક હોય નિવૃત્તિ લઈ અને બસ માત્ર સાધના જ કરતા હોય એવા ગુરુ। પાંચમા પ્રવૃત્તિ માર્ગી સાધક ગુરુ ને છઠ્ઠા ધર્મ પ્રચારક ગુરુ। હવે જરાક ફરી આનું હિન્દીમાં બી બોલી લઉં, કારણ કે આપણે રાખ્યો છે વિષય ને હિન્દીમાં બોલવાનો, તો સેજ रिपीट કરી दूं कि गुरु के 6 प्रकार हो सकते हैं। उसमें एक परम गुरु, सिद्ध गुरु, योगी गुरु, निवृत्ति मार्गी साधक गुरु, प्रवृत्ति मार्गी साधक गुरु और धर्म प्रचारक। तो जो निवृत्ति धारण करके जो योग मार्ग में साधना भी कर रहा है और दूसरों को मार्गदर्शन भी देते हैं, उसको निवृत्ति मार्गी साधक गुरु कहते हैं। जो लोग प्रवृत्ति भी करते हैं और साधना भी करते हैं और दूसरों को मार्गदर्शन देते हैं, वो प्रवृत्ति मार्गी साधक है। और दूसरा धर्म प्रचारक गुरु भी होते हैं, कई धर्म गुरु है, कई कथाकार वगैरह है, उनका भी बहुत बड़ा फॉलोवर्स, बहुत बड़ा ग्रुप होता है, उनको भी लोग गुरु मानते हैं। तो इस तरह ये प्रकार के गुरु है। उसमें जो परम गुरु है वो उसको डिवाइन गुरु कहते हैं। दूसरे जो सिद्ध गुरु है वो सुपर नेचुरल गुरु है।
सुपर नेचुरल, क्योंकि उसके पास सिद्धियां है। तीसरे जो गुरु है वो योगी गुरु, उसको सुपर ह्यूमन गुरु कहते हैं। वो ह्यूमन से थोड़े ऊपर उठ गए, सुपर ह्यूमन गुरु है योगी गुरु। और बाकी के नीचे के तीन जो है वो ह्यूमन गुरु है। इस तरह 6 प्रकार के गुरु होते हैं। और व्यक्ति जो गुरु को पसंद करती है वो अपने लेवल ऑफ बीइंग के हिसाब से पसंद करती है। तो अपने अंदर जो पड़ा है वो आदमी अपने गुरु के अंदर भी चाहता है। तो जिसको मोक्ष की इच्छा है तो ऐसे कुछ एकदम गिने चुने साधक होते हैं, वही ऐसे गुरु की पसंदगी कर सकते हैं। बाकी तो अपने अंदर जिस तरह की कुछ भी है स्थिति, उसके मुताबिक वो गुरु को पसंद करते हैं। दूसरी बात, कई बार क्या होता है कि गुरु के बारे में एक व्यक्ति की कल्पना होती है। जैसे कई लोगों को होता है कि भाई सन्यासी गुरु श्रेष्ठ है। कोई सन्यासी होता है, अकिंचन होता है, कुछ लेता नहीं है, ऐसे गुरु को पसंद करना चाहते हैं। एक इसका ख्याल है कि गुरु ऐसा होना चाहिए, तो ऐसा गुरु को ढूंढता है। तो कभी कभार उसको ऐसा मिल भी जाता है। पर जरूरी नहीं है कि जो कोई सन्यासी गुरु है वो सब अकिंचन ही होते हैं। उसने त्याग किया होता है, पर वैराग्य है या नहीं वो तो पता नहीं चलता। बाहर से हम कुछ कह नहीं सकते कि ये व्यक्ति वैरागी है कि नहीं। त्यागी हो सकता है, पर वैराग्य तो एक अंदर की स्थिति है, वो अलग बात है। और महर्षि पतंजलि ने भी जो गुरु, जैसे हमने देखा परम गुरु, तो महर्षि पतंजलि ने भी जो गुरु का जो वर्णन किया है या गुरु बताया है वो अपने आत्मा को ही बताया है। और उसी को तावड़िया जी ने ईश्वरा द गुरुदेवा कहा है। तो हमारे अंदर जो पड़ा है वही गुरु है। वो हमारे, क्योंकि परम गुरु और आत्मा गुरु इसमें कोई फर्क नहीं है, तात्विक रूप से दोनों एक ही है, दोनों तत्व ही है। तो परम गुरु है वही आत्म गुरु है, और वही हमें मार्गदर्शन आगे जाके देता है और आगे ले जाता है। तो इस तरह हमारे अंदर जो पड़ा है वो जो गुरु है वो परम परम गुरु का ही एक तत्व है। और अगर तावड़िया जी की सिस्टम के बारे में कहें तो उनकी परंपरा तो महर्षि पतंजलि की थी, पर वो उसने कभी जीवन में गुरु का रोल नहीं किया था। वो हमेशा फ्रेंड के रूप में ही रहते थे, गाइडेंस देते थे, फ्रेंडली रहते थे हमेशा। वो कभी भी गुरु नहीं बने थे किसी के। तो पतंजलि ऋषि का जो परंपरा थी, वो परंपरा उन्होंने आगे नहीं चलाई, उसमें गुरु शिष्य संबंध उन्होंने प्रस्थापित नहीं किया है। फिर भी गुरु शिष्य संबंध जो है वो बहुत सूक्ष्म रूप में होता है। तो कोई व्यक्ति किसी महापुरुष को अपना गुरु मन से, भाव से मान सकता है, और उसका गाइडेंस स्थूल रूप से या सूक्ष्म रूप से ले सकता है। और गुरु अगर हयात नहीं है तो उनकी जो किताबों में ज्ञान पड़ा है वो भी मार्गदर्शन का ही काम करता है। अगर गुरु के साथ हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं तो हमें ऑन द स्पॉट ज्ञान मिलता है। तो कोई महापुरुष अगर है ऐसा पहुंचा हुआ और उसके साथ अगर हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं तो हमें मार्गदर्शन मिलता है। तो इस तरह सावरिया जी खुद गुरु नहीं थे, फिर भी उन्होंने हम सबको मार्गदर्शन दिया है, बहुत रूप से दिया है और अभी भी दे रहे हैं। तो हम सब सदनसीब है। और जो जिनका जो गुरु है, सबका अपना अपना गुरु होता है, तो उसके लिए एक आदर हमेशा होना चाहिए, एक समर्पण भाव होना चाहिए, तो आदमी आगे बढ़ सकता है। तो गुरु पूर्णिमा के बारे में प्रासंगिक प्रासंगिक रूप से मुझे कुछ ये कहना था। तो इतनी बात मैं कह के अभी जो मेन हमारा आज का टॉपिक है उसके ऊपर आता हूँ। अभी अ, आज से हम पर्पस सावरिया जी का ही जो सबसे बड़ा ग्रंथ, महान ग्रंथ जो है द पर्पस ऑफ बर्थ एंड डेथ, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। क्योंकि इस पुस्तक के अंदर उन्होंने बहुत कुछ दिया है, साधना भी दी है, और
और प्रकार का ज्ञान भी दिया हुआ है, सब कुछ इसके अंदर है। तो उसका एक जो चैप्टर है ऑन अवेकनिंग एंड कीपिंग अवेक, उसके ऊपर आज हम थोड़ी बात करेंगे और इसको समझने का प्रयत्न करेंगे। अभी ये चैप्टर मैंने क्यों पसंद किया, क्योंकि अब तक में हमने 14 लेक्चर्स जो थे वो इंटेंसिटी चार्ट के ऊपर हमने देख लिए। तो अल्टीमेटली इसका रिजल्ट क्या निकला, अल्टीमेट इंटेंसिटी चार्ट के जो 14 लेक्चर हमने सुने, तो उसका निष्कर्ष क्या है? एक ही निष्कर्ष है कि हम किस तरह रिजल्टेंट इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हैं। तो अभी उसका उपाय क्या है कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी को बढ़ाने का? तो वही वो चैप्टरों में ही उन्होंने बता दिया था कि भाई जागृत रहना सीखो, जागृत अगर रहोगे तो जो है वो आपकी इंटेंसिटी अपने आप में बढ़ती जाएगी। तो ये चैप्टर जो है वो इंटेंसिटी चार्ट के अनुसंधान में ही हमें समझने का प्रयत्न करना है कि अभी हम इंटेंसिटी बढ़ाना चाहते हैं, रिजल्टेंट इंटेंसिटी हमारी किस तरह बढ़े लाइफ के अंदर, क्योंकि वही एक हमारी कमानी है, वही एक हमारा जो है एक हम एनर्जी को इकट्ठा कर सकते हैं। तो उसके लिए ये चैप्टर है ऑन अवेकनिंग एंड कीपिंग अवेक। अब अवेकनिंग किस चीज़ का अवेकनिंग, मतलब हम जागृति कहें, उत्थान कहें, तो किस चीज़ को जागृत करना है, क्या सोया हुआ है और किसको जागृत करने की बात कर रहे हैं? ड्राई तो बनाओ, ड्राई बनाओ, ड्राई बना के दो। કોઈનું અચાનક આ ખુલી જાય છે અને પ્રોબ્લેમ થાય છે, તો મ્યુટ ના ખુલે એનું ખાસ ધ્યાન રાખો। મોબાઈલને અડો નહીં, એક વખત તમે મૂકી દો પછી એને અડો નહીં કે મ્યુટ ખુલી જાય। तो किस चीज़ को जगाना है? तो हमारा जीव है वो सोया हुआ है, आत्मा तो जागृत है, आत्मा तो अंदर है, वो तो कुछ नहीं है, पर जो जीव है उसको जगाने का प्रयत्न करना है। तो हमारे शास्त्र के अंदर जीव की 4 अवस्थाएं दी गई है। 4 अवस्थाएं ज़्यादातर लोग जानते हैं। पहली अवस्था है सुसुप्ति या निद्रा, ये चेतना की सुसुप्त अवस्था है, जिसमें हम रात को जो नींद लेते हैं, ये अवस्था है, उसको सुसुप्ति या निद्रा कहते हैं। दूसरी जो स्थिति है वो स्वप्न कहाँ है, पर स्वप्न वो निद्रा में जो स्वप्न आते हैं ये नहीं। अभी शरीर तो जाग गया, फिर भी हम अभी अंदर से जागृत नहीं है, मतलब हमारी जो साइकोलॉजी है उससे हम जागृत नहीं है, साइकोलॉजी के प्रति हम जागृत नहीं है। इसकी जो ये जो स्थिति है उसको स्वप्न कहते हैं। मतलब हम स्वप्न में ही जीते हैं, स्वप्न में खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, सब व्यवहार करते हैं, प्रेम करते हैं, गुस्सा करते हैं, जो करते हैं सब स्वप्न में हो रहा है। तो अपने संतों महात्मा भी जो भजन वगैरह लिख करते हैं उसमें भी बताते हैं कि भाई आ, आदमी स्वप्न में जी रहा है और स्वप्न से जागना है। तो दूसरी जो स्थिति है स्वप्न है, वो कंपेरेटिव स्थिति है, कंपेरिजन में निद्रा से अभी जागृति शरीर की हुई है। थर्ड जो है वो सच में जागृति है, जिसमें अभी जीव जागना शुरू करता है, वो जागृति की स्थिति, उसको हम सही जागृति कहते हैं। शरीर जाग गया उसका मतलब जागृति नहीं है। अभी मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो हो सकता है कि हम जागृत न भी हो, हम बेहोशी में हो, और बेहोशी में सुनते हो, बेहोशी में बोलते हैं, तो ये भी हो सकता है। तो मतलब अभी जीव जागा है कि नहीं, वो अंदर की एक स्थिति है। अगर जाग गया है तो वो अलग स्थिति से वो सुनेगा, वो अलग स्थिति से बोलेगा। तो ये जो है ये तीसरी स्थिति है जिसमें जीव जागना शुरू होता है। और जीव जीव जब संपूर्ण रूप से जाग जाता है उसको तुरीय अवस्था कहते हैं, जहाँ शास्त्र में उसको समाधि अवस्था भी कहते हैं। तो चौथी अवस्था तुरीय है, जिसमें आदमी वो संपूर्ण रूप से जाग जाता है। ये 4 अवस्था है। तो अभी नॉर्मल जो पूरी ह्यूमैनिटी है वो ज़्यादातर 2 ही अवस्था में जी रही है, सुसुप्ति की अवस्था और
स्वप्न की अवस्था। अभी तीसरी और चौथी अवस्था, एक नॉर्मल ह्यूमिनिटी जो जो नॉर्मल इंसान है, जो ह्यूमिनिटी है के अंदर ये तीसरी और चौथी स्थिति पैदा हुई नहीं है। तो जो साधना करना है वो इसीलिए करना है कि पहले तीसरी स्थिति जागृति की स्थिति बन पाए, और उसके बाद चौथी स्थिति तुरिया की स्थिति। अभी यही चार स्थिति को मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में भी हम समझ सकते हैं कि उसको जैसे कहा है कि पहली स्थिति है उसको स्लीप बोलते हैं। तो स्लीप मतलब रात को जो सोते हैं वही स्लीप। सेकंड जो है वो रिलेटिव स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, या वेकिंग स्टेट भी उसको कहते हैं, वेकिंग स्लीप कहते हैं। तो रिलेटिवली अभी जो रात को जो सोए थे उससे रिलेटिवली अभी जाग गए, हम शरीर जाग गया, कॉन्शियसनेस आ गई। तो वो कॉन्शियसनेस जो है वो रिलेटिव कॉन्शियसनेस है। ये इसको वेकिंग मतलब वेकिंग स्लीप हो गई, जागृति अभी है पर वो एक लिमिटेड प्रकार की जागृति। तीसरा जब जाग जाता है आदमी थोड़ा और, तो उसको कहते हैं सब्जेक्टिव स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। और चौथी जो है वो ऑब्जेक्टिव स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। तो ऊपर का जो चार है यही है। तो पहली स्लीप तो हम जानते हैं, दूसरी रिलेटिव स्टेट जो है कॉन्शियसनेस का, उसके अंदर उसके अंदर जो है वो संबंध आता है। रिलेटिव स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस जो है उसके अंदर हम क्योंकि संबंध में जीते हैं, वो रिलेटिवली जीते हैं एक दूसरे के साथ, तो वो रिलेटिव स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है जिसमें संबंध है। सब्जेक्टिव स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस मतलब जागृति चालू होती है तो व्यक्ति को अपने होनेपन का अनुभव होता है। तो जो आई एमनेस जो है, अपने होने का जो बोध है, वो सब्जेक्टिव स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में होता है। और चौथा जो है ऑब्जेक्टिव स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, वो एनलाइटनमेंट का एक प्रकार है। जैसे हमने समाधि बताया, इस तरह एनलाइटनमेंट जो है वो ऑब्जेक्टिव स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। तो हम बात कर रहे थे अवेयरनेस से अवेकनिंग की। तो अवेयरनेस जो है एक एनर्जी है, और एनर्जी जब सर्टेन अमाउंट में इकट्ठा होती है उसके बाद में हम जागृति या अवेकनिंग की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला जो काम करना है अवेयरनेस को बढ़ाना है, और इसीलिए तावरे जी ने बहुत सारी एक्सरसाइजेस दी है जिससे हम अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं। और अवेयरनेस बढ़ाने के बाद हमारा जो है वो एक इसका एक जत्था एक अमुक प्रमाण में जब इकट्ठा होती है एनर्जी, तो उसके बाद में अपने आप में एक जागृति के स्टेट बनना शुरू हो जाती है, थर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है। तो ये है अवेयरनेस। अब अवेयरनेस कैसे आती है? मूलाधार से तो आती है, पर अवेयरनेस आती कहाँ से है? ओरिजिन कहाँ है अवेयरनेस का? तो ओरिजिन है उसका चित्ती। चित्ती जो है वो अवेयरनेस का सोर्स है। अवेयरनेस चित्ती से आती है, और चित्ती से वो हमारे चित्त के अंदर आती है और फैल जाती है। तो ये अवेयरनेस चित्त से चित्ती, चित्ती जो है चित्ती से चित्त में आती है, उसको भी हम अवेयरनेस कहते हैं। और वो अवेयरनेस पूरे बॉडी ब्रेन सिस्टम में फैल जाती है, और वो काम करती है। अब नॉर्मल आदमी के अंदर जो अवेयरनेस जो है वो आगे हम देखेंगे, जो है उसका हम खाली 30% अवेयरनेस का ही उपयोग करते हैं। तो दिन भर की जो हमारी जो अवेयरनेस की जो मात्रा है, जो लेवल है, डिग्री है, वो बहुत लो लेवल की है। और हम जैसे कि 30% जितना ही अवेयरनेस को उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इससे ज़्यादा है ही नहीं। अगर साधना करते तो अवेयरनेस ज़्यादा आ सकती है, और उसके बाद हम उसका ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं। तो इतना अवेकनिंग के बारे में आपको बताया, आप समझ गए होंगे कि अवेयरनेस इसके बेस में है, अवेयरनेस से अवेकनिंग आती है। और जो आइडेंटिफिकेशन की स्थिति है उसको तोड़ना है, तो वो उसको तोड़ते हैं वो अवेकनिंग की स्थिति बनती है। इतना बैकग्राउंड में समझने के बाद अभी हम थोड़ा पुस्तक को, किताब को पढ़ेंगे। We cannot understand what it is to remain awake in 1 hour of talking about it
and what it entails cannot be described in one volume. तो कहते हैं कि अ, ये एक अवेयरनेस की, जागृति की, अवेकनिंग की बात करना, वो एक घंटे में हम इसके बारे में कुछ बात नहीं कर सकते, या उसकी कोई सीमा भी नहीं है कि एक एक वॉल्यूम में उसका हम कुछ डिस्क्राइब कर सके। तो वो, क्योंकि अवेयरनेस जो जो है वो अनलिमिटेड है, एकदम सीमा के पार है इसकी। इतनी अवेयरनेस का दायरा जो है वो इतना बड़ा है कि वो इसकी एक किताब, एक पुस्तक के अंदर भी हम इसको, उसका वर्णन नहीं कर सकते। टू रिमेन अवेक इज ओवरऑल एंड एवरीथिंग द हिडन मीनिंग ऑफ द ग्रेट मिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक लाइफ ऑन अर्थ। इसका मतलब क्या है? हिडन मीनिंग ऑफ ग्रेट मिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक लाइफ ऑन अर्थ। बहुत गहरी बात बताई है। तो ऑर्गेनिक लाइफ क्या है अर्थ के ऊपर की? ऑर्गेनिक लाइफ जो कुछ भी सजीव है इस पृथ्वी के ऊपर, वो सब ऑर्गेनिक लाइफ है। चाहे वो वनस्पति हो, वो चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे इंसान हो, जो भी सजीव है, जो इंद्रिय वाला है, वो ऑर्गेनिक है। तो ऑर्गेनिक लाइफ ये है। और ऑर्गेनिक जो है, ऑर्गेनिक का मतलब होता है, ऑर्गेनिक मीन क्लोजर टू नेचर। तो नेचर जो है उससे जो क्लोज जो है वो ऑर्गेनिक है। अब हमने ऊपर ही देखा अभी कि चित्ती जो है, वो चित्ती हर चीज़ का सोर्स है। तो चित्ती को ही नेचर कहते हैं। और ऑर्गेनिक लाइफ का जो एग्जिस्टेंस है इस पृथ्वी के ऊपर, वो ये चित्ती से बनता है। तो चित्ती से जो प्रवाह आता है वो ऑर्गेनिक लाइफ को सजीव रखता है। अब हम जानते हैं कि जो भी क्रीचर है, जो भी सजीव सृष्टि में जो भी कुछ जीव है, उसके अंदर ये ऑर्गेनिक लाइफ में चित्ती का प्रवाह जब आना बंद हो जाता है तो वो डेथ हो जाता है। इसको हम डेथ कहते हैं, मृत्यु का। तो उसका रहस्य ये है कि भाई ये एक अवेयरनेस कांस्टेंट बनी रहे। तो जो तावरिया जी कहते थे कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ योगा, कहते थे कि कॉन्शियस डेथ एंड कॉन्शियस बर्थ इज द पर्पस ऑफ योगा। तो ये रहस्य ये है कि ये अवेयरनेस कंटिन्यूस रहनी चाहिए। और कंटिन्यूस अवेयरनेस अगर रहती है तो ऑर्गेनिक लाइफ जो है उसका वो कंटिन्यू रहती है। मतलब फिजिकल बॉडी चाहे समाप्त हो जाए, पर अगर अवेयरनेस खंडित नहीं होती है तो मृत्यु के बाद भी उसको पता लगता है कि अभी ये मैं कहाँ जा रहा हूँ। नॉर्मली क्या होता है कि जब मृत्यु होती है तो हमें पता नहीं चलता है हमारी कॉन्शियसनेस को, हम कहाँ जा रहे हैं दूसरे स्टेट के अंदर। पर अगर अवेयरनेस खंडित नहीं है, अवेयरनेस की कंटिन्यूटी है, तो हम जान सकते हैं कि अब हम यहाँ से दूसरे लोक में गए और जगह गए, कहाँ भी गए, और वहाँ भी वही अवेयरनेस मेंटेन होती है। और जब उसको दोबारा जन्म लेना आता है तो वही अवेयरनेस के द्वारा ही वो पसंद करके दोबारा जन्म ले सकता है। तो अवेयरनेस की कंटिन्यूटी रहती है, उसको तावरिया जी योग कहते हैं। और जो रहस्य जो उसका है, ग्रेट मिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक लाइफ, तो यही है कि अगर इसके अंदर, ऑर्गेनिक लाइफ के अंदर अवेयरनेस की कंटिन्यूटी बनती है तो वो इसका एक पर्पस है। पर फिजिकल बॉडी जो है वो अंत हो जाता है। और सामान्यतः जो पशु पक्षी वगैरह है उसमें फिजिकल बॉडी का अंत होने से ऑर्गेनिक लाइफ उसकी वहाँ समाप्त हो जाती है। पर जो जीव है, जीव की यात्रा है, उसमें उसकी यात्रा वहाँ समाप्त नहीं होती है, वो दूसरे जगह जाता है, वहाँ भी उसकी यात्रा बनी रहती है। तो ये कुछ वो ऑर्गेनिक लाइफ का ये समझाने का प्रयत्न करते हैं, ऐसा लगता है मुझे। वी आर हियर इंटरेस्टेड इन द लाइफ ऑफ मैन, and one should not expect subjective wisdom which has been hidden for ages to be easily understood. तो हमारे जो ऑर्गेनिक लाइफ जो है, हम इंसान की, मनुष्य की जो ऑर्गेनिक लाइफ है, इसके बारे में ही हम बात करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है हम। क्योंकि जैसे मैं बताया तो
इंसान की जो अवेयरनेस है वही आगे जाती है, मृत्यु के बाद भी वो अवेयरनेस खंडित नहीं रह सकती है, दूसरों की तो समाप्त हो जाती है। एंड वन शुड नॉट एक्सपेक्ट सब्जेक्टिव विजडम। सब्जेक्टिव में विजडम मतलब आत्मा लगती जो है, आत्मा के बारे में जो जानना है, वो हम आसानी से एक जन्म में हम ये समझ नहीं सकते हैं। तो सब्जेक्टिव नॉलेज है, जो सब्जेक्टिव विजडम है, वो बहुत गहरी चीज़ है। तो उसको धीमे धीमे समझ में आता है। जितना जितना आत्मा के प्रति हमारी गति होती है, इतना हमारा सब्जेक्टिव विजडम बढ़ता जाता है। स्टॉप थिंकिंग एंड बी कंटेंट टू बी। अभी ये अवेकनिंग की स्थिति की बात कर रहे हैं, बताते हैं कि कैसे अवेकनिंग आएगी। तो स्टॉप थिंकिंग। अब दिन भर हम थिंकिंग में ही रहते हैं, विचार 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 में ही रहते हैं, जिसे हम डे ड्रीमिंग कहते हैं, कभी ब्रूडिंग होता है। तो डे ड्रीमिंग, ब्रूडिंग, एक्शन रिएक्शन, इसके अंदर ही हमारा जीवन समाप्त हो जाता है। तो कहते हैं कि स्टॉप थिंकिंग, विचारना छोड़ दो। विचारना क्या है, विचारना क्यों है, ऐसी क्या जरूरत है, ऐसी हम कौन सी तकलीफ में है कि हमें विचारने की जरूरत है। सब कुछ तो आराम से आसानी से चल रहा है, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि दिन भर सोचते रहें। अब जब कोई सामने कोई घटना घटती है तो हमें विचारना पड़ता है, सामने कुछ होता है तो हम को विचारने की, ये जो थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट, इसको इंस्ट्रूमेंट कहाँ है, ये इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करना है। तो कब, जब ज़रूरत है तब इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया। पर ये तो इंस्ट्रूमेंट दिन भर में चलता रहता है। ये तो हमारी हालत ऐसी हो गई कि गाड़ी घर में है, फिर गाड़ी में घूमना नहीं है, फिर भी गाड़ी का इंजन चालू रखा है। गाड़ी वापरते नहीं है पर इंजन तो चालू का चालू है, 24 घंटे तो इंजन चालू रहेगा। ऐसा हमारे ये थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट जो विचार का साधन है, उसकी हालत है। तो थिंकिंग करने की कोई जरूरत ही नहीं है। होवापना जो है, मतलब अपना जो होने का जो अपना बीइंग है, उसका अनुभव जितना होता रहेगा इतना थिंकिंग कम होता रहेगा। तो जब जब भी मौका मिलता है तो अपना जो होनापन है, इसके अंदर हमें आ जाना चाहिए। आई एमनेस, मैं कहाँ हूँ। अभी इस समय हम बैठे हैं, घर में बैठे हैं, सुन रहे हैं, तो उसका एक हमें भान होना चाहिए, एक सभानता आ जानी चाहिए कि मैं हूँ, अभी यहाँ हूँ और मैं सुन रहा हूँ, और मेरी शरीर की ऐसी स्थिति है, मैं ऐसे बैठा हूँ, चेयर पर बैठा हूँ, पलंग पर बैठा हूँ, किस तरह बैठा हूँ, किस सोफा पर बैठा हूँ, तो कौन सी स्थिति में हूँ, हाथ पैर किस तरह प्रकार में है। इस सारी चीज़ों का एक जो एक अंदर है, जो एक बोध रहता है, वो एक अवेकनिंग की स्थिति है। और जो जो भी कुछ है सामने, उसमें कंटेंट, उसमें जो संतुष्ट रहना है, जो स्थिति है। अभी जो हम बैठे हैं, जो सुन रहे हैं तो सुन रहे हैं बस, अभी सुन रहे हैं और दूसरे विचार करते हैं, उसकी क्या जरूरत क्या है। अभी इसके बाद क्या करना है, कोई आने वाला है, ये है वो है, कल क्या करना है, इसकी जरूरत अभी क्या है, इस मोमेंट के ऊपर तो कोई जरूरत नहीं है। फिर भी दिमाग के अंदर ये विचार घुस जाते हैं अननोइंगली, अनकॉन्शियसली। तो ये जागृति की स्थिति नहीं है, ये निद्रा की स्थिति। तो अगर जागृति की स्थिति चाहिए तो हमें हमें एटलीस्ट बॉडी लेवल के ऊपर तो हमेशा हमें अवेयर बनना ही पड़ेगा। जो स्थिति शरीर की है वो पहले अनुभव करो, उसके बाद अंदर मन की स्थिति क्या है उसका अनुभव करो। ये जो है वो अवेकनिंग की स्थिति इस तरह धीरे धीरे आती है। अवेकनिंग हैज मेनी फेसेट्स। टेस्ट द वाइन, look at flowers, hear the music. Remaining awake needs uh, remaining awake needs no special way of life. In all the simple activities of life, let us be present and not perform automatic. तो यहाँ दूसरी एक क्लियर कट बात बता दी कि कुछ भी ऑटोमेटिकली नहीं होना चाहिए, मशीन की तरह नहीं होना चाहिए। बी प्रेजेंट, हाजिरी हमारी हो जानी चाहिए। जो भी करते हैं, जहाँ जो कुछ कर रहा है उसके अंदर हमारी पहले तो हमारी प्रेजेंस को लाना है, और प्रेजेंस होगी तो ये अवेकनिंग की संभावना बनती है। अगर प्रेजेंस नहीं होती है तो मशीन ही होना है, मशीन में कोई अवेयरनेस थोड़ी होती है, प्रेजेंस थोड़ी होती है, मशीन काम करता रहता है। तो हम मशीन नहीं है, कम से कम हमारे अंदर एक ये अवेयरनेस आ जानी। योर माइंड मस्ट बी वेयर यू आर और इन वॉट्स एवर यू आर एंगेज इन। तो आप जहाँ हैं वहीं आपका
आपका मन जहाँ है वहीं आपका शरीर भी रहना चाहिए, और जहाँ आपका शरीर है वहीं आपका मन रहना चाहिए। तो मन और शरीर जब दोनों एक ही जगह पर होते हैं, वो अवेकनिंग की स्थिति की शुरुआत है। शरीर भी यहाँ है और मन भी यहाँ है, और मन को पता है शरीर की स्थिति का, शरीर को पता है मन की। तो ये जो चीज़ है कि हम जहाँ हैं जैसे, और किस चीज़ में अगर एंगेज भी है, अभी सुन रहे हैं तो आप एंगेज है, आपका माइंड एंगेज रहता है, तो उसका भी बोध होना चाहिए कि मेरा माइंड जो है अभी एंगेज है, मेरा ब्रेन जो है वो अभी कुछ समझने का प्रयत्न कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह अवेकनिंग की शुरुआत हो सकती है। इट इज स्ट्रेंज, इट इज ऑलवेज क्वाइट क्लोज, it is an external consideration, a non-identification, non-expression of negative emotion। तो अवेकनिंग की स्थिति बनती है तब ये सारी चीज बनती है। एक्सटर्नल कंसिडरेशन आता है, मतलब दूसरे के बारे में हम सोच सकते हैं। नॉन आइडेंटिफिकेशन होता है, मतलब जो जीव चिपक जाता है हर चीज के अंदर, वो चिपकेगा नहीं, अब वो न्यूट्रल रहेगा, वो नॉन आइडेंटिफिकेशन है। और नॉन एक्सप्रेशन ऑफ नेगेटिव इमोशन, तो अंदर कोई इमोशंस तो आ गया, इसको एक्सप्रेस नहीं करना है, उसको जरा अंदर पकड़ के होल्ड करते हैं। तो ये चीज़ कब बनती है कि एक तो प्रेजेंट मोमेंट होती है और अवेकनिंग की स्थिति होती है, तो इस तरह की चीज़ें बन सकती है। और अवेयरनेस को स्ट्रेंज बताया कि एकदम स्ट्रेंज चीज़ है, जैसे आश्चर्य होता है, इस तरह की एक चीज़ है। तो वो क्वाइट क्लोज भी है, हमारे बहुत नज़दीक है ये स्थिति। अबव ऑल ट्रांसफॉर्म ऑल सफरिंग। अब ये दूसरी बात हुई, દાદા सफरिंग। સર, हाँ, હવે हेलो। 5 મિનિટમાં આપણો ટાઈમ પતી જશે તો આપણે ओके। ફરી જોઈન થવાનું રહેશે, એ જાગે એનાઉન્સમેન્ટ કરવાનું. हाँ हाँ, तो આપણું आज जो ये अभी ये वेबिनार चल रहा है, उसके अंदर एक 50 मिनट का ही एक टाइम देते हैं ये लोग। तो 50 में अभी 5 मिनट के बाद हो सकता है एक ब्रेक आ जाए, हम डिस्कनेक्ट हो सकते हैं। तो जिसको ज्वाइंट होना है तो वे फिर दोबारा वही लिंक को क्लिक करेंगे, तो फिर दोबारा हम ज्वाइंट हो सकेंगे। और 6 बजे तक हमारा ये कार्यक्रम चलेगा। तो अगर सडनली ये बंद हो जाता है तो आप दोबारा लिंक क्लिक करके ज्वाइंट हो सकते हैं। अबव ऑल ट्रांसफॉर्म ऑल सफरिंग। जो सफरिंग है, जो दुख है, उसको ट्रांसफॉर्म करना, वो भी अवेकनिंग की स्थिति से ही बनता है। दुख आता है उसको हम ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते, दुख में हम जी लेते हैं, दुख में रोते हैं, दुख में पछताते हैं, दुख में न जाने क्या क्या करते हैं, दुख से भागते हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो दुख जो है उसको ट्रांसफॉर्म करना एक अलग स्थिति है। जब दुख दुख को हम कॉन्शियसली सहते हैं, कॉन्शियसली, जब दुख को हम कॉन्शियसली सहते हैं तब ट्रांसफॉर्म होता है। मैकेनिकली सहते हैं तो वो ट्रांसफॉर्म नहीं होता है। और 99% हम दुख को मैकेनिकली ही सह लेते हैं। तो दुख जो होता है उसको कॉन्शियसली सहना पड़ता है, तब जाके वो ट्रांसफॉर्म होता है। और वो ट्रांसफॉर्म होता है तो बहुत सारी एनर्जी दे जाता है, एक बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग दे जाता है। और तब पता भी चलता है कि दुख कितनी काम की चीज़ है। नॉर्मली दुख से हम घबराते हैं, भागते हैं, जीवन में कोई नहीं इच्छा कि अपने जीवन में दुख आए, सफरिंग से सब भागते हैं, सब बचते हैं। पर जब इसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तब आदमी को पता चलता है कि अगर ये दुख नहीं आया होता तो मेरा इतना ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं होता। पर इसके लिए थोड़ी एनर्जी चाहिए और अवेकनिंग की स्थिति चाहिए, तब उसको हम ट्रांसफॉर्म करें। वन सेल्फ कैन बी इवोक ड्यूरिंग मोमेंट ऑफ ग्रेट डेंजर और एमिट ग्रेट ब्यूटी। तो हमारा जो सेल्फ है वो कब जाग जाता है, कभी कभी ग्रेट डेंजर होता है, एकदम हम जंगल में निकल गए और सामने से शेर आ गया, कुछ आ गया ऐसे, तो एकदम ग्रेट डेंजर, या चल रहे हैं और एकदम एक सांप नाग आ गया, तो एकदम हम डेंजर में आ जाते हैं। तो एक कॉन्शियसनेस एक इवोक हो जाती है, उस समय जागृत हो जाती है, तो हमारा सेल्फ जाग जाता है उस समय। या कभी हम एक इतनी ब्यूटीफुल जगह पर चले जाते हैं कि हम हमारे मुंह से शब्द नहीं निकलता, इतना ब्यूटीफुल अगर वो जगह है, तो भी ये जो है, ये जागृति का एक अनुभव हो जाता है। उस समय व्यक्ति जागृत हो जाती है क्षण भर के लिए,
उसके बाद फिर विचार आना चालू हो जाता है तो जागृति टूट जाती है। तो ये जो ये या ग्रेट डेंजर है या ग्रेट ब्यूटी है, उस समय विचार थम जाते हैं, विचार रुक जाते हैं, तो तब जागृति पूरी खिलती है। विचार भी होता है और जागृति दोनों साथ साथ ज़्यादातर चलते नहीं हैं, कभी कभी होता भी है, पर जो रियल में क्या होता है कि उस समय विचार रुक जाते हैं और एक पूर्ण जागृति का अनुभव होता है। तो ये है, वन सेल्फ कैन बी evoked during moments of great danger or amidst great beauty. One can equate remaining awake to remaining constantly aware of 3 SRB, 3-step rhythmic breathing, or the all-purpose yogic breath, the correct natural breath we are born with. अब उन्होंने जागृत होना है उसको 3 SRB के साथ उन्होंने जोड़ा है कि अगर आपको जागृत कॉन्स्टेंटली जागृत होना है तो आपको कॉन्स्टेंटली 3 SRB करना पड़ेगा। 3 SRB and remaining awake are the same, for only 3 SRB established for all 24 hours can keep you awake even in sleep. तो 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग में क्या हम करते हैं, 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग आवाज आवे। ओके ओके। तो सावरिया जी ने इसे 3 स्टेप के साथ जोड़ा है। ये जो है वो अवेयर रहना और 3 स्टेप दोनों को पर्याय बताया है, क्योंकि अवेयरनेस भी 24 घंटा चलनी चाहिए और 3 SRB भी 24 घंटा चलना चाहिए। तो दोनों एक भी दूसरे को सहायक भी है, दोनों एक दूसरे के साथ साथ चल सकते हैं। इसीलिए सावरिया जी ने हमें देखो, हमें सावरिया जी के किताबों में ज़्यादा जागृति की बात नहीं की है, सिवाय कि एक ये चैप्टर है, ताकि उन्होंने ज़्यादा डायरेक्ट जागृति के ऊपर काम करने की बात नहीं कही है। उन्होंने हमेशा 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग के ऊपर काम करने का ही बताया है, क्योंकि 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग श्वास और प्राण को सिंक्रोनाइज करने का साइंस है, और वो जब दोनों सिंक्रोनाइज हो जाता है तो नेचुरली अवेयरनेस अपने आप में बढ़ती है। तो अवेयरनेस का इनडायरेक्ट मेथड जो है वो 3 SRB, 3 SRB करोगे तो भी अवेयरनेस आएगी। तो पर अवेयरनेस डायरेक्ट लाना थोड़ा मुश्किल है। अभी आपको कहते हैं कि भाई आप जागृत हो जाओ, तो न भी हो सकते हैं, पर अगर कहते हैं कि 3 स्टेप करो और 3 स्टेप करते करते आप धीरे धीरे जागृत हो सकते हो। तो इसीलिए 3 SRB इसका उसका बेस है। अगर 3 SRB होता है तो जागृति एकदम आसान हो जाती, इसलिए उन्होंने 3 SRB और ये दोनों को जोड़ा हुआ है। और कहते हैं कि आगे जाके स्लीप के अंदर भी ये जागृति और 3 SRB दोनों मेंटेन हो सकेंगे। टू बी और टू रिमेन अवेक इज ए 24 आवर्स अ डे एंडोवियर जस्ट एज 3 SRB इज। तो ये 24 घंटे का एक प्रयोग है, 24 घंटे इसके ऊपर मेहनत करना पड़ता है, वो चाहे अवेयरनेस की बात हो या चाहे 3 SRB की बात हो। 3 SRB हो या अवेयरनेस है, दोनों के अंदर 24 घंटे मेहनत करनी पड़ती है। देर इज नो सब्सटीट्यूट फॉर रिमेनिंग अवेक और फॉर 3 SRB। उसका कोई दूसरा सब्सटीट्यूट ही नहीं है, उसका कोई दूसरा उपाय ही नहीं है, दूसरी ऐसी कोई उसका ये नहीं है कि जिसको हम कर लें तो ये 3 SRB नहीं करेंगे तो चलेंगे, या अवेयरनेस नहीं होगी तो चलेगी, या 3 SRB या अवेयरनेस या दोनों को एक ही कहें। तो ये अगर है तो ही एक मतलब ये संपूर्ण चीज़ है, उसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। इट इज़ नॉट माइंड और ब्रेन एक्टिविटी एंड नॉलेज कैन नॉट बी सब्सटीट्यूट फॉर इट ईदर। तो ये जो है कोई कोई उसका सब्सटीट्यूट में कोई ज्ञान भी नहीं है कि भाई कोई ग्रंथ पढ़ लिया या कोई और कुछ कर लिया, कोई क्रिया कर ली, कोई और साधना कर ली तो उसका कोई सब्सटीट्यूट बन जाता है, या कोई माइंड और ब्रेन की कोई एक्टिविटी कर ली वो उसका सब्सटीट्यूट बन जाता है। ऐसा नहीं, उसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, चाहे आप अवेयर रहो या 3 SRB करो, बस उसके अलावा कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। एनी एक्टिविटी दैट hinders one from remaining awake or makes one forget 3 SRB is wrong activity। तो जो चीज़ आपको जागृति से भुलावा में डालती है, जागृति नहीं होने पाती है, या अगर 3 SRB नहीं हो पाता है, वो जो एक्टिविटीज है वो सब गलत एक्टिविटी।
अगर आप कुछ करते हैं और उस समय स्टेप नहीं हो पा रहा है तो वो गलत एक्टिविटी है। अगर कुछ आप करना चाहते हैं और आप प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रह सकते हैं, आप जागृत नहीं रह सकते, वो गलत चीज़। और ज़्यादातर तो ऐसा ही होता है। ज़्यादातर तो हम अ, जो विचारों में चले जाते हैं तो न त्रिदेशर भी चलता है, न जागृति रहती है। तो समझो कि विचार एक इसका दुश्मन जैसा है। जैसे जैसे विचारों के अंदर हम गुम हो जाते हैं तो उस समय रिदम जो है वो टूट जाती है और जो जागृति है वो भी टूट जाती है। तो इसीलिए वो उसको कंटिन्यू करना पड़ता है। और ऐसी कोई प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए जिसके अंदर हम जागृत न रह सके और सीएसआर भी न कर। मतलब जो जो प्रवृत्ति करे उसके अंदर ये दोनों का होना जरूरी है और प्रयत्न करना चाहिए कि दोनों हो सके। CSRB is something objective that can be experienced and which can help you to remain awake if you can keep it in observation from time to time. तो 3SRB जो है, अगर आप बार बार टाइम टू टाइम इसको चेक करते रहेंगे कि भाई मेरा 3SRB चल रहा है कि नहीं, मेरा 3SRB चल रहा है कि नहीं, तो वो जो क्रिया है वो अपने आप में सापेक्ष रूप में जागृति बन जाती है। क्योंकि आपको अगर 3SRB को चलाना है तो भी पहले तो जागृति तो चाहिए। 3SRB कोई ऐसी यांत्रिक क्रिया नहीं है कि बस ऐसा सोचा और 3SRB चलने लगा। 3SRB के लिए एफर्ट करना पड़ता है और एफर्ट करने के लिए जागृत रहना पड़ता है। तो जागृति वहाँ सापेक्ष रूप में आ ही जाती है। It is also important to know that 3SRB by itself will not go on because it has also no momentum till it has been established. तो 3SRB कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो अपने आप में चलता रहे। 3SRB को टाइम टू टाइम चेक करना पड़ता है। एक बार चालू किया तो अभी चालू हो गई, ये कोई मशीन नहीं है। ये डायाफ्राम जो है, डायाफ्राम को भी ट्रेन करना पड़ता है, पर ये ऐसा नहीं है। उसको बार बार डायाफ्राम को भी चेक करना पड़ता है कि अभी ये 3SRB की रिदम में चल रहा है कि नहीं। तो वो बार बार टाइम टू टाइम उसको चेक करना पड़ता है। हाँ, एक बार अगर जब 3SRB 24 घंटे एस्टेब्लिश हो जाता है फिर ये कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर तब तक तो उसको ये जो है इसका कोई मोमेंटम अपने आप में मोमेंटम नहीं है, इसलिए उसको बीच बीच में मोमेंटम देना पड़ता है, उसको गति देनी पड़ती है। तो रिमेंबर योर प्रैक्टिस ऑफ 3SRB एंड रिमेंबर टू प्रैक्टिस मैनी मैनी टाइम्स डेली। ठीक है, तो ये 3SRB की प्रैक्टिस जो है उसको हमेशा याद रखना है और बार बार इसको याद करके करते ही जाना है। रिमेंबर टू रिमेन अवेक बिकॉज दिस स्टेट बाय इटसेल्फ हैज नो मोमेंटम ऑफ इट्स ओन। अब जैसे 3SRB अपने आप में उसकी कोई गति नहीं है, उसको बार बार चेक करना पड़ता है, उसको करते रहना पड़ता है। ऐसा ही अवेकनिंग का है। अवेकनिंग की स्थिति है जो अपने आप में, ऐसा नहीं है कि भाई अवेकनिंग की स्थिति है, वो एक बार अवेक हो गए तो आप फिर अभी कुछ भी कर लो आप अवेक ही रहेंगे। उसका भी कोई मोमेंटम, अपना मोमेंटम नहीं है, इसलिए बार बार ध्यान देके उसको मोमेंटम देना पड़ता है। इट हैज़ टू बी कॉन्शियसली पुश्ड कंटिन्यूअली, वन मस्ट मेक एफर्ट मोमेंट टू मोमेंट। तो मोमेंट टू मोमेंट एफर्ट करना पड़ता है उसको आगे ले जाने के लिए, वो चाहे 3SRB हो या चाहे अवेयरनेस या अवेकनिंग हो। The moment you cease to do so, you are asleep. And if you are asleep, you cannot carry on with 3SRB either, because 3SRB is a proof of your remaining awake, just as early light is proof of the sunrise. तो जिस घड़ी के अंदर ये जागृत रहना बंद हो गए या 3SRB बंद हो गए, हम सो जाएंगे, फिर से स्लीप में चले जाएंगे। तो जब तक 3SRB चल रहा है और जागृति है, अवेकनिंग है, तब तक ही हम स्लीप के परे हैं। नहीं तो स्लीप, स्लीप माने बेहोशी, साइकोलॉजिकल बेहोशी, तो फिर से हम साइकोलॉजिकल बेहोशी के अंदर आ जाते हैं। तो 3SRB इसका एक प्रूफ है कि आप जागृत है कि नहीं। 3SRB चलता है तो अवेयरनेस, अवेकनिंग अपने आप में रहेगी। 3SRB नहीं है तो अवेकनिंग नहीं रहेगी। तो इसका एक प्रूफ है, अगर आप जागृत नहीं है तो मतलब कि आपका 3SRB भी अभी बंद हो गया है। जस्ट एज अर्ली लाइट
इज प्रूफ ऑफ सनराइज। जैसे कि सूर्योदय होता है तो जब वो जो लाइट सुबह में आती है हल्की सी, वो ऐसा इसका एक प्रूफ है कि अभी सूर्योदय हो रहा है। इफ यू आर अवेक यू नीड no friction from higher powers in your life because friction is introduced to remind you that you are asleep। ये भी बहुत गहरी बात आ गई अभी। हमारे जीवन में फ्रिक्शन क्यों आते हैं, दुख क्यों आते हैं, संघर्ष क्यों आते हैं? क्योंकि फ्रिक्शन जो है वो फ्रिक्शन इसलिए आते हैं कि हम जागृत नहीं है। जो आदमी जागृत हो गया उसके जीवन में फ्रिक्शन की जरूरत नहीं है। मतलब उसके जीवन में दुख नहीं आते ऐसे नहीं, दुख सुख तो एक साइकिल है, वो आएंगे, पर उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी हमारे जीवन में जो सुख दुख आता है इससे हमें बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि ये जो फ्रिक्शन आती है वो हमें डिस्टर्ब कर देती है क्योंकि हम जागृत नहीं हैं। अब जब हायर पावर हमको फ्रिक्शन देता है, इसका एक पर्पस है कि हमारी स्लीप टूटे। तो स्लीप को तोड़ने का एक ही सबसे अच्छा कुदरत में उपाय है कि फ्रिक्शन। तो जहाँ जहाँ संघर्ष होता है उससे भागना नहीं है। संघर्ष होता है उसका मतलब ये है कि कुदरत हमें यहाँ जगाना चाहती है। तो हम नॉर्मली तो ट्राई ये करते हैं कि संघर्ष न हो, ऐसा हो नहीं सकता। और संघर्ष से भागना नहीं है, जिस जगह संघर्ष अनिवार्य है वहाँ संघर्ष को आने देना है और उसमें से ऊपर उठने का प्रयत्न करना। यही तो उसका संघर्ष का पर्पस है। वी कैन नॉट रिलाई ऑन एक्सीडेंट टू प्रोड्यूस अवेयरनेस ऑफ ए हायर ऑर्डर। तो एक्सीडेंट कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो हमें हमारे अंदर अवेयरनेस को ला दे। एक्सीडेंट तो एक एक्सीडेंट ही है, इसके ऊपर हम डिपेंड नहीं रह सकते। कभी ठीक है, पर अवेयरनेस जो हायर ऑर्डर में होता है उसके लिए हमें एक एफर्ट करना चाहिए। और जो सामने से जो चीज़ आ रही है या संघर्ष के रूप में आ रही है, जो चीज़ में जिस तरह भी आ रही है उसको एक्सेप्ट करके आगे चलना है। One must not meditate under special circumstances and at certain times, but under all circumstances and each waking moment. This we may describe as through meditative attitude। तो तावरिया जी कहते हैं कि भाई ये जो ध्यान है वो कोई एक निश्चित जब संजोग होते हैं, स्पेशल संजोग होते हैं, उसके अंदर करने की चीज़ नहीं, हर समय ध्यान रहना चाहिए। तो ये इस अवेयरनेस के साथ भी इसका एक जुड़ान है, क्योंकि ध्यान और अवेयरनेस इसको हम साथ साथ में भी ले जा सकते हैं। जब ध्यान होता है तो अवेयरनेस के बिना कोई ध्यान का मतलब नहीं है। अगर ध्यान करते हैं और अवेयरनेस नहीं है तो वो कोई ध्यान नहीं होता है। तो अवेयरनेस या ध्यान दोनों कोई स्पेशल सर्कमस्टांसिस में नहीं होने चाहिए, वो हर समय होना चाहिए। और हर समय अगर ये हो सकता है तो उसको वो मेडिटेटिव एटीट्यूड कहते हैं। हालांकि मेडिटेटिव एटीट्यूड एक अलग भी है, जिसको पतंजलि जो जिसको संयम कहते हैं, दाना ध्यान समाधि जब इकट्ठा होती है उसको पतंजलि संयम कहते हैं। और संयम को वैसे तावरिया जी योग सूत्र में मेडिटेटिव एटीट्यूड कहते हैं कि ध्यान ध्यान अभिमुखता। कि वो ध्यान से निकलेगा ही नहीं, हमेशा हर समय ध्यान के अंदर ही रहता है, संयम इसको कहते हैं, वो मेडिटेटिव एटीट्यूड। इट इज नेवर पॉसिबल टू इवॉल्व विदाउट एक्सपीरियंसिंग दिस स्टेट विदाउट बीइंग अवेक। तो ये मेडिटेटिव एटीट्यूड है, वो जागृत होने बिना कभी भी ये संभव ही नहीं है इसका एक्सपीरियंस हो। तो अगर मेडिटेटिव एटीट्यूड का अनुभव लेना है तो पहली शर्त ये है कि जागृत तो होना पड़ेगा। जागृत होंगे तो ही मेडिटेटिव एटीट्यूड का एक एक्सपीरियंस हो सकेगा। We must be able to distinguish between wakeful sleep and being awake. We must be able to distinguish between wakeful sleep and being awake। दोनों में क्या फर्क है? वेकफुल स्लीप मतलब हमने जैसा कहा ना, सेकंड स्टेज जो है ना, वो जो स्वप्न का जो स्टेट है वो वेकफुल स्लीप है। और बीइंग अवेक मतलब तो अंदर का भी वो जाग गया। तो ये दोनों में, ये दूसरी और तीसरी अवस्था की बात कर रहा है। दोनों में क्या फर्क है? दूसरी और तीसरी अवस्था का फर्क है। वी मस्ट बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन वेकफुल स्लीप मतलब सेकंड स्टेज एंड बीइंग अवेक दैट इज थर्ड स्टेज। इसके बीच में का अंतर है, वो हमें समझना चाहिए। द सेल्फ इज ऑलवेज अवेक।
जो सेल्फ है हमारा वो तो हमेशा जागृति है। तो बॉडी ब्रेन सिस्टम नो स्लीप, और बॉडी ब्रेन सिस्टम हमेशा स्लीप में ही रहना पसंद करती है। बॉडी ब्रेन सिस्टम को जागना पसंद ही नहीं है, क्योंकि जागने जागने में एक मेहनत है, एक थोड़ी कठिनाई पड़ती है। जब स्लीप है उसमें सब आसानी है, क्योंकि उसमें कोई संघर्ष नहीं होता है। जागृति के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो बॉडी ब्रेन सिस्टम को हमेशा स्लीप ही पसंद है। आई लुक थ्रू माई आईज नॉट विथ देम, मतलब क्या? आई लुक थ्रू माई आईज नॉट विथ देम। अब थ्रू का मतलब ये हुआ कि कोई देखने वाला तो कोई और ही है ना। आई लुक थ्रू आई, तो आंख है, आंख के जरिए मैं देख रहा हूँ। तो बाहर की चीज में देखता हूँ आंख द्वारा, मतलब कि मैं जो हूँ कोई अंदर है और वो आंख द्वारा देख रहा है। नॉट विथ देम, मतलब आंख द्वारा आप देख नहीं रहे, आंख नहीं देख रही, आंख द्वारा मैं देख रहा हूँ। तो ये जो मैं है, जो सेल्फ है, वो इम्पोर्टेंट। वी आर व्हाट वी ऑब्जर्व एंड नॉट व्हाट वी ऑब्जर्व। अब ये भी कंफ्यूजिव एक स्टेटमेंट लगता है, और उसको समझना पड़ता है। वी आर व्हाट ऑब्जर्व, जो जो हम हैं, जो देख रहे हैं वो, और जो देखा जा रहा है, चीज जो देखा जा रही है वो अलग है। व्हाट वी आर, तो हम जो है, मैं अगर एक चीज को देखता हूँ तो मैं अलग हूँ, मैं अलग हूँ, और एक जो चीज देखी जाती है वो चीज अलग है। इसलिए वो कहते हैं व्हाट वी आर व्हाट ऑब्जर्व एंड नॉट व्हाट वी ऑब्जर्व। तो जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो चीज हम नहीं है, हम कुछ और है। व्हाट ऑब्जर्व्स वंस बॉडी ब्रेन सिस्टम इज वन सेल्फ, द फ्रेगमेंट ऑफ डिविनिटी विद इन ईच वन ऑफ अस। तो हमारा जो बॉडी ब्रेन सिस्टम को जो ऑब्जर्व कर रहा है वो सेल्फ है, हमारा सेल्फ है जो डिवाइन है, और वो जो हमारे अंदर है। तो मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफ़ी है। किसी को इसके अंदर कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ये हालांकि पढ़ने में तो आसान है, समझने में भी शायद आसान होगा, पर ये करना और जीवन में उतारना सबसे मुश्किल है। जीवन निकल जाता है पर एक अंश जागृति नहीं आती। और अगर आप थोड़ा बहुत भी CSRB का अभ्यास करते हैं तो हो सकता है कि धीरे धीरे करके आपके अंदर जागृति आएगी। बाकी बहुत मुश्किल है। जागृति के बारे में पढ़ना, बात करना, लेक्चर देना, लेक्चर सुनना, वो सब आसान है, पर जागृति के साथ जीना वो सबसे मुश्किल काम है। और अगर हम 3SRB का अगर हमारे पास सहारा नहीं है तो और मुश्किल हो जाता है। जो लोग सीधे अवेयरनेस के प्रयोग करते हैं वो सफल ज़्यादातर नहीं हो पाते। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते। प्रणाम दारा साहब। प्रणाम प्रणाम। જે કૃષ્ણમૂર્તિ જ્યારે બર્ડ ને ઓબ્ઝર્વ કરતા हाँ ત્યારે પોતે ઘણીવાર એમ કહેતા કે આઈ એમ ધ બર્ડ. જ્યારે અહીંયા જે આપ છેલ્લું વાક્ય બોલ્યા એ એની સાથે કોન્ટ્રાડિક્શન ઊભું કરે છે. તો જરા સમજાવશો? આ હું કદાચ ઓછું જાણું છું. ના ના, બરોબર છે, તમારી વાત બરોબર છે, પણ આની અંદર જે આ છે ને એના આ બધા સ્ટેજીસ છે ને, તો કૃષ્ણમૂર્તિ જે છે ને એ ચોથી અવસ્થાની અંદર ને જે હતી એ ચોથી અવસ્થામાંથી એ વાત કરતા હતા, અને આપણે જે હમણાં જે છે આ ત્રીજી અવસ્થાની વાત કરીએ છીએ કે જ્યાં આગળ આપણે એને જોવાનું છે, આપણે જોઈ રહ્યા છે. પણ પેલાની અંદર એને તો આપણા શાસ્ત્રની અંદર સાયુજ્ય સિદ્ધિ કહે છે. સાયુજ્ય મતલબ એ જે છે સામેની વ્યક્તિ, સામેની વસ્તુ, એના જેવા તમે બની જાઓ છો, એને સાયુજ્ય કહેવામાં આવે છે. એટલે એ બહુ જ ઊંચી સ્થિતિ છે. એટલે જે આપણે જે 4 સ્થિતિની અવસ્થાઓ જોઈએ એમાં જે તુર્યાવસ્થા છે, જ્યારે એ કહે છે કે આઈ એમ ધ બર્ડ, ત્યારે એ તુર્યાવસ્થા એને એ બધે જ પોતે બધે જ વ્યાપ્ત છે એવી એને પોતાની અનુભૂતિ છે. એટલે એ સ્થિતિ બહુ ઊંચી છે. અને આપણે જે વાત કરીએ છીએ કે આપણા જે પ્રયત્ન છે એ ત્રીજી સ્થિતિના છે, જાગૃતિના સ્થિતિના છે, કે જ્યાં આગળ આપણે હું અને આ ઓબ્જેક્ટ, આ બે વસ્તુ આપણે અહીંયા આગળ અલગ પાડીને જોઈએ. એટલે આપણું તો એક વિટનેસનો એક આપણી શરૂઆત છે. આપણે જે હમણાં જે વિટનેસની વાત કરીએ છીએ આ એક વિટનેસની શરૂઆત છે.
અને એની અંદર તો આખું એક ટોટલિટી આવી જાય છે, પછી એનાથી કઈ થયું નથી હોતું. એ બે थैंक यू वातना- सर. हाँ ओके. और किसी को? सॉरी मैंने गुजराती में ही एक्सप्लेन कर दिया, अभी हिंदी में ट्राई करेंगे बाद में. चलिए, और किसी को कुछ सवाल है? गुजराती जल्दी छूटती नहीं है. ठीक है, तो समाप्त करते हैं. कोई प्रश्न नहीं है तो यहाँ समाप्त करते हैं. अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे, आगे पढ़ेंगे, कुछ समझने का प्रयत्न करेंगे. थैंक यू वेरी मच.